Welcome all to Dr. MDS Academy. So from today onwards, we are going to see machine design subject. So this is the syllabus for the GATE machine design here. Okay. So we will go through each and every points. So these are the different chapters I have divided. First one is static dynamics, loading, failure theories, strength and SN diagram. Okay. Then after the second chapter covers is riveted joints, welded joints, screw joints. Third is the quarter joints and knuckle joints. Very important from the engineering service exam point of view. Then after fourth chapter follows is the keys and coupling. Then after flat belt drives, flywheel, bearing. Eighth is the gears, and then after nine is the friction. Okay. So here is gear we have already covered in the theory we have seen. Okay. So here only the strength, okay, calculating the stress, okay, is important in this chapter in machine design. So now, so let's begin from chapter one. So what we see in chapter one, okay, so different mechanical properties in metals, okay, very important. Okay, so these questions directly being asked in the any ECU examinations. Okay. Then after machinability, what is grip? Okay, in the interview also questions being asked. What is resilience? Proof resilience. Okay. So then after fits and tolerances. So this part I am going to cover in the production engineering. Okay, in very detail. For the time being, I am just skipping here. Then after riveted joints, okay, what is the crushing or the searing? Okay, stress is acting in the rivet. Okay, when the two plates either butt or lap joints, okay, are there. Okay, what will be the failure? How the failure will take place in the rivet? Okay, that we are going to see. Factor of safety, very important terms. Okay, we will apply these terms in the numerical. Okay, then after this equations, okay, m upon I is equal to sigma upon y is equal to r. This is for the case of the bending stress equation. Similarly, t upon j is equal to shear stress upon r radius is equal to c theta upon l. Okay, this is for the case of the shaft, okay, undergoing torsion. Okay, this is for the case of the bending stress, this is for the case of the torsion. Okay, that's why the shear stress is coming here, normal or bending stress is coming. Okay, then after, okay, then after very important next terms are completely reversed stress. We have to understand what is completely reversed stress. Then after fluctuating stress, what is that? Okay, then after what is repeated stress and endurance or fatigue limit is what? Okay. So endurance or fatigue limit is what? A part when subjected to a repeated stress. Okay, like this. It fails at a stress below the yield point stress, known as the fatigue stress. Okay, say we are having a this graph. Okay, we are loading it. This is our stress upon a strain graph. We are loading. Okay, then after unloading. Okay, then we will find that after certain number of cycle, okay, it feels below the yield point strain. Okay, the normal stress when we will plot na stress or strain. Okay, we must get graph something like this. So E point is here, elastic point, and Y is little upper side. Okay, Y is little upper side. Okay, so this graph must follow.
But for what happens when repeated load we are acting, it fails at a point below that point, means somewhere here. Why? Before y. Okay, it will fail. So that maximum stress is known as endurance stress. Okay, so based on all this, chapter is little higher, but big. Okay, so we will try to finish it in part wise. Okay, then after various load correction factors values comes. Okay, so that we have to multiply with suitable stress value. Okay, so like load factor. Okay, the A means axial load, S means shear load correction factor for reversed shear stress. So in all the cases, the reverse term will be associated. Okay. Now we are going to solve some of the previous year questions. Okay. Now see, two shafts A and B are made up of same material. Okay. Two shafts A and B are made up of same material. The diameter of shaft B is twice that of diameter of shaft A. Diameter of shaft B is twice that of shaft A. The ratio of the power which can be transmitted by shaft A to that of shaft B means power A upon power B. Okay, this values ये गेट का क्वेश्चन ने पूछा है. Okay, so what we know is P is equal to, this is power is equal to T into omega. We know that. So T is what we know. Shear stress upon R is equal to T upon G. Okay. So can I write like this? This is our torque. This is our torque. Okay. So T can we write like this? Shear stress J upon R. What is J here? Polar moment of inertia. Polar moment of inertia. So for the shaft, okay, what we write? Pi by 32 d to the power 4. We know that. Okay. इस जे को ही आई जेड जेड भी बोलते हैं. आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इज डिफरेंट. ओके, टेंथ मटेरियल में आई ऑलरेडी कवर्ड इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर. ओके, you can go through that my lecture. So this j is pi by 32 d to the power 4. Now can I put here? Okay, so finally T is equal to shear stress into pi by 32 d to the power 4 on what is r? R is the radius, means d upon 2. Okay, so this is our shaft and the diameter given is d. Okay, diameter given is d. So for this we are getting like this. So shear stress into pi by 16 d cube. After calculation we are getting t. So can I put here? So power we are getting t into omega. Okay, so what p is equal to t. Can I write like shear stress into pi by 16 d का क्यूब और ओमेगा क्या है? दिस इज आवर इन यूनिट इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना. टी क्या है? टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू इसका टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? टी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी बाई टू. ये तो होता है. मतलब ये सर्कल यदि मैं ड्रॉ करूं इसका, है ना, लाइक दिस.
इसका मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ करूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इस व्यू से देखूं मैं, ठीक है, यदि मैं ऐसे देखूं, ठीक है, सर्कल दिखेगा मेरे को, ठीक है, तो इसका मेरे को टॉर्क ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो फोर्स क्या होगा, यदि ये सेंट्रल लाइन है सपोज, फोर्स यदि यहाँ पर इस पॉइंट पे लेते हैं, फोर्स ऐसे होगा, रेडियस क्या हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं, ठीक है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, यानी d/2 हो जाएगा, सेम थिंग आई हैव रिटन ना हियर, आर इज इक्वल टू d/2, ठीक है, सेम थिंग, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू सेंटर से, सेंटर ये हो गया है ना, सी, ओके, so this is the, that's why like we applied formula, so pi by 16 d cube, so complete t term I have written, so what is omega, omega with what angular velocity this is rotating, क्या, ओमेगा इज आवर रेडियन पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गया टॉर्क का, जो मैं बताना चाह रहा था, टॉर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, फोर्स का, और डिस्टेंस का यूनिट, डायमीटर का यूनिट मीटर, और ओमेगा का ये फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60, यानी कि आरपीएम, ठीक है, पर सेकेंड यूनिट हो गया, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, न्यूटन मीटर, यहाँ टॉर्क का हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है, और ओमेगा का क्या हो गया यूनिट, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड, तो आ गया क्या हमें ये वाला, ठीक है, ओके, तो this omega can be written as 2 pi n upon 60, okay, तो क्वेश्चन पे जाते हैं, द रेशियो ऑफ द पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ए टू दैट ऑफ बी, ठीक है, अब देखो सिर्फ डायमीटर वेरिएशन ही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो सिर्फ डायमीटर ही देखेंगे हम लोग कैसे वेरी कर, ओके, कैसे देखेंगे, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर कैसे वेरिएशन कर रहा है, डी क्यू है क्या, है ना, बाकी सारे टर्म्स के बारे में दिस क्वेश्चन इज नॉट डिस्कस, so power is directly proportional to the p times the diameter, so write like this, pa upon pb, okay, यही तो पूछा है, p upon pb, तो can I write like this, da upon db, ठीक है, इसका क्यूब या यू कहें, ठीक है, अब da अपॉन db क्या है, यहाँ से हम लोग da अपॉन db क्या निकल सकते हैं, da अपॉन db क्या निकल सकते हैं, 1/2 होगा, तो पुट हियर from equation 1, okay, so d upon dv 1/2 to the power 3, so we are finally getting pa upon pb equal to 1/2, 2 ja 4, 4 2 ja 8, ठीक है, so we are getting 8, so this is our final calculated value, okay, so c is our correct answer, ठीक है, now we will go for the question number 2, क्या बोल रहा है, ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, a forged steel link with uniform diameter 30 mm at the center is subjected to axial force that varies from 40 kN in compression to 160 kN in tension. A forged steel link with uniform diameter, diameter दे रखा है, d given is 30
mm. Okay, these are the given values. At the center is subjected to an axial force, जैसे कि मेरे पास ये ऐसे शाफ्ट है, ठीक है। ओके, डायमीटर दे रखा 30 एट द सेंटर, दिस इज आवर सेंटर। ओके, subjected to an axial force that varies from 40 kilonewton in compression, मीन्स फुट माइनस 40 किलो न्यूटन दे रखा है कंप्रेशन में, और एक पॉजिटिव 160 किलो न्यूटन दे रखा है टेंशन में। ओके, फोर्स इन कंप्रेशन दे रखा है, फोर्स इन टेंशन ये वेरीज कर रहा है, मतलब कि ये ऐसे लोड लगा रहे हैं -40, ठीक है, फिर जाकर दूसरा केस में यही लोड बदल जा रहा है, ठीक है, ऐसे में तो 160 टेंशन में आ रहा है, ठीक। सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, ऐसे लोड जा रहा है, ठीक है, तो हमें आ रहा है क्या, ऐसे लोड जा रहा है राइट साइड में, तो टेंशन हो रहा है, तो 160 मीन्स पॉजिटिव 160, और ऐसे कंप्रेशन में जा रहा है तो नेगेटिव 40 किलो न्यूटन, दिस इज आवर इन पॉजिटिव में जा, ठीक है। द टेंसाइल यू दे रखा है, ठीक है, एस यू दे रखा है, एस वाई दे रखा है, मीन्स दूसरा वाला टर्म एल, और करेक्टेड इंडोरेंस एस ई, इंडोरेंस दे वैल्यू, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील मटेरियल आर 600 MPa, 600 MPa, ये दे रखा है दो 420 किसके लिए, दूसरा वाला एल्ड के लिए, 420 MPa, 240 इंडोरेंस के लिए, 240 MPa, ठीक है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर इंडोरेंस एज पर द सोडरबर्ग्स क्राइटेरिया, ठीक है, सोडरबर्ग्स बोल रहा है यूज करने की, ठीक है। तो क्या होता है, 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, सोडरबर्ग क्या होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन है, थोड़ा मेमोरी में डालना है, एमई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब एमई, सी देखो, गुडमैन्स क्या होता है, 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सेम में ऐसे हो, ठीक है। ये गुड्समैन है, मैंस क्राइटेरिया, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों का लिखेंगे, यहाँ पर भी एम ई होता है गुडमैन में, यहाँ पर भी एम ई होता है सोडरबर्ग में, ठीक है, एम ई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर गुडमैन में यू होता है, वी होता है, ठीक है, और यहाँ पे यू की जगह वाई हो जाएगा, और बाकी सब से यू भी ना होके वाई ई भी होगा, ठीक है। व्हाट इज सिग्मा एम इज द मीन स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा इज द मीन स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल स्ट्रेस, ये हो गया एल्ड स्ट्रेस, ये हो गया इंडोरेंस स्ट्रेस, ओके, ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, ये होता है, ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। देखो, इल्ड का मतलब क्या हुआ, जो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये वाला सोडरबर्ग यूज करते हैं, ठीक है।
अल्टीमेट मतलब कि ये ब्रिटल मटेरियल के लिए जनरली यूज करते हैं, लेकिन बुक में दिया रखा है बोथ। बोथ, ठीक है। डक्टाइल प्लस ब्रिटल मटेरियल के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमें। चलो वापिस क्वेश्चन पे करते हैं। तो हमें दे रखा है, यानी कि ये हो गया सिग्मा यू, ठीक है। एस यू ना लिखे सिग्मा, ये सिग्मा वाई हो गया, ये सिग्मा ई हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हमें मालूम है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। हमें क्या क्या मालूम है, क्या क्या मालूम है, सिग्मा वाई मालूम है, यस मालूम है 420। सिग्मा ई मालूम है, यस 240। और हमें सिग्मा एम नहीं मालूम है और सिग्मा वी नहीं मालूम है, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में, अक्सर क्वेश्चन में यू विल फाइंड दिस सिग्मा एंड सिग्मा वी आर नॉट गिवन, सो यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्स दे रखा है दो टर्म, यहाँ से हमें कैलकुलेशन, सी हियर डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज गिवन, क्या डायमीटर को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक स्ट्रेस, इस डायमीटर को इससे डिवाइड करेंगे तो एक दूसरा स्ट्रेस आएगा, तो दो स्ट्रेस चाहिए ना हमें। हियर मीन स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन डिवाइडेड बाय 2, यानी मीन स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस। Also sigma v variable, sigma max minus sigma mean divided by 2. This is our another variable stress. Okay, so one by one we are going to see, ठीक है। हम्म, तो कैसे देखेंगे हम लोग, देखो एक सिग्मा वन आ रहा है, सपोज सिग्मा वन फोर्स अपॉन एरिया, एफ सी अपॉन एरिया, क्या हो गया, एफ सी माइनस 40 किलो है तो 10 पावर 3 कर दिए, ये न्यूटन में यूनिट है। और ये कितना में है, 5/4 डी स्क्वायर बोले तो 30 आएगा यहाँ पर, ये एम एम में का स्क्वायर में है, ठीक है। न्यूटन पर एम स्क्वायर इज मेगा पास्कल, तो कैन आई राइट लाइक दिस, -40 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 5/4 डी, व्हाट इज डी हियर 30, कितना आ रहा है, कैलकुलेट इट, 40 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर, ये आ रहा 56.588, 56.588, ठीक है, मेगा पास्कल। दिस इज माइनस, सो दिस विल डेफिनेटली बी कम इन minus term, okay। Similarly we are going to solve for the sigma 2 also। सिग्मा 2 कैसे आएगा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू एफ
टी, ठीक है, अपॉन एरिया. Area is this. Ft is what? Plus 160 into 10 power 3 upon pi by 4 d का स्क्वायर. ठीक है, कितना आ रहा है? 160 इंटू 10 power 3 पाई बाई 4 इंटू डी. डी इज हाउ व्हाट? 30 का स्क्वायर. ये कितना आ रहा है? तो आई एम यूजिंग माई ओन कैलकुलेटर फॉर टाइम सेविंग. 160 इंटू 10 to the power 3 divided by pi divided by 4 into 30 का स्क्वायर. So we are getting 226.35 okay, MPa. So this is in our positive, okay, because of positive. Now हमें क्या चाहिए? सिग्मा एम और सिग्मा वी निकालने के लिए सिग्मा एन को इस तरीके से कैलकुलेट. देखो, दो मेरे पास वैल्यू है, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन फाइंड आउट करना है, तभी जाके सिग्मा एम और सिग्मा वी विल गेट इट. ओके, सी हियर व्हाट इज मैक्सिमम हियर? यदि में रिपीटेड स्ट्रेस है ना, ये रिपीटेड स्ट्रेस है, तो इफ दिस इज आवर टाइम एंड दिस इज आवर स्ट्रेस वैल्यू, हियर टेंशन, हियर बॉटम इज द कंप्रेशन. एक पॉजिटिव में जा रहा है 2 to 6, यानी कि ये वाला मानते हैं 2 to 6. दिस वैल्यू इज सिग्मा मैक्स, जो कितना है? 226.35. ओके, अनदर इज दिस इज अवर जीरो. ठीक है, इस जीरो से नीचे जा रहे हैं, जीरो से नीचे जा रहे हैं कंप्रेशन में, तो -50. ये थोड़ा छोटा मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ये छोटा मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये हो गया सिग्मा मीन मिनिमम वैल्यू -56.588. ठीक, यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो कैसे होगा? तरीके से, मतलब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, रिपीटेड है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस. ओके, सो कैन आई राइट हियर लाइक दिस? दिस इज आवर सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम, सॉरी, दिस इज आवर सिग्मा मिनिमम. क्यों? क्योंकि निगेटिव है ना, ये मिनिमम हो गया माइनस, ये हो गया सिग्मा मैक्स, यानी कि पॉजिटिव में बड़ा वैल्यू. तो मैं दो स्ट्रेस आ गया, दो स्ट्रेस आ गया, तो हमें सिग्मा एम निकल जाएगा फ्रॉम हियर. So this was our equation 1, this is our equation from 2. ठीक है, put sigma max and sigma mean. सिग्मा एम मीन कितना आएगा? सिग्मा मैक्स कितना है? 226.35. ठीक है, प्लस सिग्मा मिनिमम वैल्यू कितना है? सिग्मा मिनिमम वैल्यू कितना है? -56. तो प्लस के बाद -56.588. ठीक है, डिवाइडेड बाई, एक तो ये आ गया, दूसरा सिग्मा वेरिएबल कितना आ गया? सिग्मा मैक्स, मैक्स कितना है? 226.35 माइनस, ठीक है, माइनस सिग्मा मिनिमम कितना है? -56, -56.588 divided by 2. So how much we are getting these values? 226.35 -56.588 divided by 2. So we are getting 84.881 megapascal. Okay, मिनिमम वेरिएबल कितना आ रहा है? 226.35 माइनस माइनस प्लस 56.588 divided by 2. So we are getting
141.469 MPa। तो अब आ गया। नाउ पुट थ्री वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाला 3 का वैल्यूज अब 1 में क्या था, ये था ना 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें निकालना है। सिग्मा एम कितना निकाला, 84.881 डिवाइडेड बाई 420 प्लस, ठीक है, सिग्मा वेरिएबल कितना आया 141.469 अपॉन 240। So how much factor of safety we are getting? So 84.881 divided by 420 plus 141.469 divided by 240। ठीक है, तो वी आर गेटिंग कैलकुलेशन यदि मैं करूँ तो 0.79155 आ रहा है। ठीक है, तो यदि मैं 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालूं तो 1/0.79155। ठीक है, यदि मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो आ रहा है 1.263। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, अकॉर्डिंग यूजिंग द सोडरवर्क आंसर आ रहा है मैच का 1.263। 1.263 ये पहला वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सोडरबर्ग इक्वेशन हमें निकालना होगा जब वेरियस कंप्रेशन एंड द टेंसाइल लोड्स आर गिवन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A machine component made of a ductile material is subjected to, देखो ductile material, तो गुडमैन लगाएंगे या सोडरबर्ग? अभी मैं क्या बोला था, गुडमैन कहाँ लगाते हैं, गुडमैन हम लोग लगाएंगे अल्टीमेट है तो ये जनरली ब्रिटल मटेरियल के लिए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग ग्राफ ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, ठीक है, ये वाला आता है हमें अल्टीमेट। ठीक है, तो अल्टीमेट होंगे या तो डक्टाइल में यूज करो या ब्रिटल मटेरियल, तभी तो ये पैराग्राफ यहाँ तक स्ट्रेच होके जा रहा है। ग्लास रहता है, ठीक है, ग्लास रहता है या कास्ट आयरन रहता है तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, ये माइल्ड मटेरियल के लिए या माइल्ड स्टील के लिए होता है, जो वेरी कॉमन है, जो बुक में हम लोग अक्सर देखते हैं। ये पूरा ये हो गया फ्रैक्चर, ये हो गया ई पॉइंट, ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एल्ड मिलेगा। ठीक है, एल्ड इज अवर ई। ठीक है, और ये लोअर एंड अपर एंड। ठीक है, यदि मैं कास्ट आयरन की बात करूं, कास्ट आयरन की बात करूं, ठीक है, जो कि ब्रिटल होता है, ठीक है, या ग्लास की बात करूं, या ग्लास की भी बात कर सकते, ठीक है, जो कि ब्रिटल होता है, तो ग्राफ सिंपल हम लोग का ऐसे जाएगा और यहाँ पर ब्रेक। ठीक है, आगे वो जाएगा ही नहीं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो जनरली हम लोग वुडमैन जो हो गया, हम लोग अल्टीमेट मतलब डक्टाइल और ब्रिटल दोनों के लिए यूज करते हैं, तो ऐसा है। सोडरबर्ग कहाँ यूज करते हैं, एल्ड वैल्यू है ना, एल्ड के बाद वो मतलब एल्ड मतलब वो खिंचाना है, इलास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल के लिए हम लोग यूज करते हैं, एल्ड कहाँ यूज करते हैं, डक्टाइल मटेरियल, सॉरी, डक्टाइल मटेरियल के लिए। इस क्वेश्चन में वही काम बोला है करने को। इस क्वेश्चन में वही बात बोला है करने को कि मेरे पास डक्टाइल मटेरियल दे रखा है,
डक्टाइल मटेरियल दे रखा है, subjected to a variable loading with sigma minimum, ठीक है, सिग्मा मिनिमम दे रखा है -50 मेगा पास्कल, और सिग्मा मैक्सिमम दे रखा है, सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है 50 मेगा पास्कल, यानी कि पॉजिटिव में दे रखा है। if the endurance if the corrected endurance limit and yield strength, देखो strength और stress एक ही होता है टर्म, okay, so don't be confused. if the corrected endurance limit sigma e और yield यानी sigma y, ठीक है, कुछ दे रखा है वैल्यू क्या of the material area sigma e dash is equal to sigma e या sigma e dash बोथ, ठीक है, MPa करेक्टेड मतलब कि ये लोड करेक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करके वो सिग्मा ई आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा वाई कितना दे रखा है 300 मेगा पास्कल, 300 मेगा पास्कल रिस्पेक्टिवली। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, देखो कहीं कुछ नहीं बोल रहा है इसमें कि हमें गुडमैन लगाना है या सोडरबर्ग लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग क्या करेंगे, डक्टाइल मटेरियल दे रखा है ना, डक्टाइल मटेरियल में क्या बोला था, हमें सोडरबर्ग यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, सोडरबर्ग। तो 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग ओके, यूजिंग सोडरबर्ग क्राइटेरिया क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए बोलता है यूज कर, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ओके। 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन सिग्मा, एम ई यू भी होता है, तो वो होता है गुडमैन के लिए, सोडरबर्ग के लिए क्या होता है, यू ना होके वाई होता है, ठीक है, ये होता है। हमें क्या क्या दे रखा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये निकालना है, ठीक है, और सिग्मा वाई कितना दे रखा है 300, सिग्मा ई दे रखा है क्या 100, ठीक है। हमें ये दोनों नहीं पता है, ठीक है, तो इसका हमें पता करेंगे। तो सिग्मा मैक्स क्या होगा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, 1 सिग्मा मीन क्या होता है, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन अपॉन 2, ये होता है ना एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस इसी को बोलते हैं ना मीन स्ट्रेस या एवरेज स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या हो गया, सिग्मा मैक्स कितना है, सिग्मा मैक्स इज 50, पॉजिटिव 50, और सिग्मा मिनिमम कितना है -50, तो पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव यहाँ उठा दिया, मिनिमम कितना है -50, ओके, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 50 -50 डिवाइडेड बाय 2 इज 0 मेगा पास्कल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सिग्मा वी, सिग्मा वी जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम divided by 2, this is our variable stress, variable stress, okay। so sigma max कितना है पॉजिटिव 50 है ना, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम कितना है, सिग्मा मिनिमम इज अवर -50, so -50 divided by 2, okay, what we are getting is 50 minus minus plus 50 divided by 2, we are getting is 50,
मेगा पास्कल। सो ऑल वैल्यूज भी कैलकुलेटेड ना, सिग्मा एम आ गया यहाँ 0, सिग्मा वी आ गया 50, सो पुट इन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या आ गया इक्वेशन 1 से, 1 by factor of safety equal to sigma m upon 300 plus sigma v upon 100, ठीक है। सिग्मा मीन कितना है, 0, 0/300 प्लस सिग्मा वी कितना है, 50, 50/100, तो वी आर गेटिंग 0 प्लस 1/2, 2 हो गया ना, तो वी आर गेटिंग 1 by factor of safety, factor of safety is equal to 1/2. So finally what we are getting is factor of safety is our 2. So answer correct is 2, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक से 2 आ जाएगा, ठीक है आंसर। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्या बोल रहा है, बार ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फिगर दे रखा है, बार ऑफ स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को भी दे रखा है विथ 0.5 मीटर लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है, 0.5 मीटर, आर मेड अप ऑफ मटेरियल विथ शियर स्ट्रेंथ यानी शियर स्ट्रेस ऑफ, ठीक है, इतना दे रखा है शियर स्ट्रेस का वैल्यू, मटेरियल का शियर स्ट्रेस इतना, ठीक है। द स्क्वायर बार क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस आर, ठीक है, यानी कि 4 दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। मेरे पास स्क्वायर बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 40 mm और 40 mm दे रखा है, आई हैव कन्वर्टेड टू mm, इस तरीके से ये लेंथ हो गया, जहां तक जा रहा है, जहां तक जा रहा है वो हो गया, ये हो गया, दिस इज आवर 40 एंड दिस इज आवर 40, दिस इज आवर 40 mm। The square bar cross section dimension 40 into 40 and the cylindrical bar cross section diameter is 4 centimeter। एक सर्कल भी है ना, ये सर्कल है ना, इसका डायमीटर कितना दे रखा है हमें, ये बार हो गया, लेंथ कितना दे रखा है, 440 mm, ठीक है, डायमीटर। The specimens are loaded as shown in the figure. Which specimens will fail due to the applied load as per the maximum shear stress theory, ठीक है। देखो तो ABCD इस तरीके से पहले वाला को करते हैं, ठीक है, इस वाले को करते हैं, 1 को 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 केस 1, 4 केस 1, ठीक है, क्या होगा यदि मेरे पास इस तरीके से है ना, इस तरीके से यदि मैं लोड ऐसे खींच रहा हूँ इसको 80 किलो न्यूटन से, ठीक है, टेंसाइल है ना, खींच रहा हूँ, क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स कितना होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा ना, ये टेंसाइल स्ट्रेस
फोर्स कितना है 80, तो इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्टेड। एरिया हाउ मच गिवन इज 40 इंटू 40 mm में करता हूँ, ऑल वी विल कैलकुलेट इन मेगा पास्कल, फिर वो कंपैरिजन करेंगे मेगा पास्कल। तो एरिया कितना है 40 इंटू 40, ठीक है, ये आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर, ठीक है, तो वी आर गेटिंग 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूटन में था और ये mm स्क्वायर में था, ठीक है, तो फाइनली सिग्मा टी वी आर गेटिंग 50 मेगा पास्कल, ठीक है, लेकिन हमें शियर स्ट्रेस दे रखा है और कौन सा फेल हो रहा है, मीन्स कंपैरिजन वी विल हैव टू डू। मोर सर्कल हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आई हैव ऑलरेडी टॉट, यू कैन गो थ्रू दैट video, okay, you will be able to understand very quickly and easily how you can draw a Mohr circle, okay? कैसे ड्रॉ करते थे, फिर से उसको हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, क्या सिग्मा टी, एक हम लोगों का एक्स एक्सिस था और एक वाई एक्सिस, ठीक है, क्या था, ये सिग्मा टेंसाइल होता है, ये सिग्मा कंप्रेसिव होता है, निगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है, और ये शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव इन अप डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन डाउन डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है सिग्मा टी टेंसाइल, जो कि क्या है पॉजिटिव में है ना, टेंसाइल में है ना, इज गिवन टेंसाइल हियर, ओके, सो वी विल कंसीडर पॉजिटिव हियर, तो पॉजिटिव, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जीरो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक गया वो क्या 50, मीन्स पूरा का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50, मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्टेंस इज 50, ओके, तो ड्रॉ ए सर्कल, मोहर सर्कल, दूसरा और कोई स्ट्रेस तो है नहीं, ठीक है, एक 50 है और दूसरा है नहीं, तो ये इसको डायमीटर में रख के हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा टी पॉजिटिव में, ठीक है? हमें शियर स्ट्रेस कैसे मिलेगा, ये जीरो से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं शियर, वाई एक्सिस में, ये वाला कितना मिलेगा, शियर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, तो फाइनली हाउ मच वी आर गेटिंग इज सिग्मा 25 मेगा पास्कल, ठीक है, रेडियस, क्या ये ग्रेटर देन 20 मेगा पास्कल है क्या, इन क्वेश्चन मटेरियल का स्ट्रेस दे रखा है 20 मेगा पास्कल, मेड अप ऑफ मटेरियल विथ शियर स्ट्रेस 20 मेगा पास्कल, सारे मटेरियल का 20 मेगा पास्कल, लेकिन ये एक्सीड कर जा रहा है 80 किलो न्यूटन दे, तो दिस विल फेल, व्हाट विल, इट विल फेल, क्या होगा, ये क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, तो एक तो ये आंसर मिलेगा, विच इक्वेशन विल फेल, ठीक है, तो पहला वाला तो फेल होगा, यानी टेंसाइल वाला फेल होगा, ठीक है, टॉर्शन लोड ये पता नहीं, अभी कैलकुलेट करना, बेंडिंग कैलकुलेट करना है, नन ऑफ दिस स्पेसिमेन, देखते हैं, टेंसाइल हाँ फेल कर रहा है तो आंसर डी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वी विल कैलकुलेट नेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है, तो आंसर तो डी आ गया मेरे पास, ठीक है, दिस वन, सेकेंड वाला फॉर केस 2, और केस कंफर्म करते हैं, क्योंकि डी आंसर में टेंसाइल तो फेल हो रहा है, कंप्रेशन भी फेल हो रहा है क्या, ठीक है, तो आंसर कंफर्म होने के बाद डी हो जाएगा, ठीक है, क्या बोल रहा है दूसरा वाला, एक तरह इस तरीके से हम लोगों का है,
ये हो रहा है कंप्रेस, कितना, सेम मैग्नीट्यूड का, सारा चीज सेम है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा, ये टी ना होके सी होगा कंप्रेशन, ये टी ना होके कंप्रेशन होगा, तो सब कैलकुलेशन विल बी ऑल सेम। ओके, ओनली साइन विल चेंज, 50 माइनस 50 MPa। तो इसका मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, सिग्मा टी, सिग्मा सी कंप्रेशन, और ये शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये -50 है ना, तो इधर चले जाए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू को बोलते हैं हम लोग -50। ठीक है, दिस इज आवर -50। तो एक ये ओरिजिन हो गया हमें, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक जीरो है और एक -50, मतलब जीरो से उठ रहा है, मतलब जीरो लो किलो न्यूटन से उठ रहा है, 80 -80 किलो न्यूटन तक जा रहा है, तो तरीके इस बीच में ही होगा। तो ये एक हम लोग सर्कल पकड़, इस सर्कल को थोड़ा सा, ओके चलो आ गया। तो ये हम लोग के पास कितना है, हाँ, तो ये वाला कितना है, -50 मेगा पास्कल। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये वाला वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है हमें, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, रेडियस ऊपर ले लो या नीचे ले लो, बोथ से। तो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर आवर अगेन रेडियस, क्या आ रहा है, रेडियस -50, ओके, अपॉन 2 will give what, shear stress value will give shear stress is equal to -25 MPa। नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, बोथ सेम। तो दिस -25 MPa, ठीक है, अगेन, ठीक है, क्या है, 20 MPa दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, 20 MPa, तो निगेटिव में भी जा सकता है ना, ये मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये बड़ा है ना, तो दिस अगेन गेट्स फेल। ठीक है, तो आंसर इज gets confirmed that both 1 and 2 are getting fade in tension and compression। थर्ड वाला भी करते हैं यहाँ पर, थर्ड वाला भी करते हैं, केस 3, केस, क्या बोल रहा है केस 3, मेरे पास ये है, सर्कुलर बार है, टॉर्शन क्या दे रहे हैं, 64 पाई न्यूटन मीटर। ठीक है, ये टॉर्शन है, ये थर्ड केस है, तो इसका सीयर निकालते हैं हम लोग। सीयर कैसे निकालते हैं, सीयर स्ट्रेस अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, ऐसे निकालते हैं ना। ओके, तो व्हाट इज शियर स्ट्रेस हमें निकालना है, टी अपॉन जे इंटू आर, टी इंटू क्या होता है, पाई/32 D⁴, और आर रेडियस को D/2 लिखते हैं, टी इंटू कैलकुलेशन करने पर विल बी गेटिंग 16 पाई डी क्यू। ओके, so shear stress we are getting T. How much torque given is 64 into pi. 64 into pi into 16 pi into D का क्यूब, diameter. How much diameter given is 40 ना, 40 mm, 40 का क्यूब. So how much value we have obtained? So direct shear stress will be getting. Okay, now normal
ठीक है, पहले केस में हम लोग सिग्मा टी आया था टेंसाइल, क्योंकि नॉर्मल लोड लग रहा था, कंप्रेशन, नॉर्मल कंप्रेशन लोड लग रहा था। बट इन दिस केस डायरेक्ट दिस शियर वैल्यू विल कम, तो फर्दर हमें नॉर्मल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल, सो 64 into 16 divided by 40 to the power 3. Okay, so this is in Newton meter na, so I am just 10 to the power 3 doing is for mm. Okay, so into, okay, 16, so this is our 16 मेगा पास्कल। ये क्या है, सेफ है ना, 20 मेगा पास्कल से, जो कि गिवन वैल्यू है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है, जो मैं कैलकुलेट किया, दिस इज सेफ। ठीक है, मतलब 20 मेगा पास्कल के अंदर में ही ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये 64 इंटू पाई लगाने पर मैक्सिमम हम लोगों का जो सीयर स्ट्रेस वैल्यू वी आर गेटिंग 16 पास्कल। तो दिस इज सी। ओके, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें फेल के लिए पूछा, सेफ के लिए नहीं पूछा। ओके, so now the fourth case is this one. Bending load 320. Bending load 320. For case 4. कैसा है क्रॉस सेक्शन एरिया, रेक्टेंगल है। ठीक है, 320 न्यूटन मीटर बेंडिंग लोड बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि बेंडिंग लोड बोल रहा है, यानी मोमेंट दे रखा है। ठीक है, ऐसे करो, 320, एम का वैल्यू दे रखा है 320 एम पी ए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा अपॉन बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, ये यूज करेंगे। जस्ट लाइक टॉर्शन, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा ना, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, तो एम इज 320, ठीक है, इनटू वाई, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है इसका, 40 mm, और ये है 40 mm। 40 mm, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं ये वाला ड्रॉ नहीं करता हूँ। ओके, तो आगे यदि मैं ड्रॉ करूँ, इसको कैलकुलेट करूँ, वाई क्या होगा, ये वाला हो गया ना, एक्स एक्स, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से पास कर रहा है। वाई क्या हो गया, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, दिस इज आवर वाई। ओके, सो वाई इज, ये हो गया मेरे पास वाई। ठीक है, तो वाई क्या हो गया, 40/2। ठीक है, आई क्या हो गया, बी डी क्यूब अपॉन 12, ए टू द पावर 4/12। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ए। ओके, दिस इज आवर ए, होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो ए हाउ मच गिवन इज 40 टू द पावर 4/12, so 320 into 40 divided by 2 into 12 upon 40 to the power 4,
So how much we are getting? 320 into 40 into 12 divided by 2 divided by 40 to the power 4. So we are getting, this is in megapascal. Okay, this is in our मेगापास्कल में, नहीं न्यूटन मीटर में था। ठीक है, ये है मेरे पास न्यूटन मीटर में, तो इसको एमएम में करेंगे 10³ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इंटू 30 आ गया, तो दिस इज वी आर गेटिंग 30 मेगा पास्कल। ठीक है, नाउ अब देखो इसका फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोहर सर्कल ड्रॉ करना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें सिग्मा वाई है, हमें सीयर निकालना है। सीयर से कंपैरिजन कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, सीयर स्ट्रेस ना जो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें एम है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज आवर व्हाट, सिग्मा टी, एंड लेफ्ट साइड इज आवर कंप्रेशन एंड दिस इज आवर सीयर स्ट्रेस। देखो ये क्या है, सिग्मा बी बोलो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, प्लस में आ रहा है ना ये आंसर, तो दिस इज आवर 30, दिस होल डिस्टेंस इज आवर 30। और दूसरा और कोई भी स्ट्रेस है क्या? नहीं। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सिग्मा बी इज 0 मीन्स एट हियर। ओके, तो हमें एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है विथ डायमीटर ऑफ 30, दिस 30 डायमीटर, ये वाला, दिस इज आवर 30 MPa। ठीक है, दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर सेंटर। यहाँ से यहाँ तक यदि डिस्टेंस हमें स्ट्रेस वैल्यू निकालना है, शियर स्ट्रेस निकाल, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेडियस क्या हो जाएगा, दिस इज आवर रेडियस ना, और क्या है, और कुछ तो ही नहीं। तो 30 डायमीटर है तो हाफ कर देंगे, विल बी गेटिंग 30/2, दिस इज आवर 50 MPa। तो अगेन ये क्या है, लेस देन 20 MPa का है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मेगा पास्कल, ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट किया मैं इस फॉर्मूला से, तो वी आर गेटिंग शियर स्ट्रेस 15 मेगा पास्कल, बट क्वेश्चन गिवन इज 20 मेगा पास्कल, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सेफ है। तो दिस इज आवर सेफ। So in this way we obtain that only case 1 fails and case 2 fails। ठीक है, remaining case 3 and case 4 are safe। case 3 safe and last case 4 is also safe। ठीक है, यहाँ पर सेफ हुआ, तो 1 और 2 जो केस है हमें फेल करा रहा है, this one। The answer is tensile and compression load, okay, gets failed। Now question number 5। okay, क्या बोल रहा है, a machine part in the form of a cantilever beam is subjected to fluctuating load as shown in figure। The load varies from 800 Newton to 1600 Newton। The modified endurance, ठीक है, modified endurance L, ठीक है, अल्टीमेट दे रखा है ना, endurance L ultimate strength या stress of the material are 200, 500, 600। ठीक है, ये किस में है, MPa मेगा पास्कल में। ठीक है, respectively the factor of safety of the beam using the modified Gutzmann criteria। ठीक है, गुड्समैन क्राइटेरिया क्या होता है, 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन सिग्मा MEUV, ये होता है ना।
सोडरबर्ग यूज करते तो वाई हो जाता। बोल्ट्जमैन है तो अल्टीमेट यूज करेंगे। अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा मीन मालूम, ठीक है। सिग्मा यू दे रखा है, क्या दे रखा है 600 ऑल मेगा पास्कल में पुट कर रहा हूँ। सिग्मा भी नहीं मालूम, सिग्मा ई दे रखा है, सॉरी, हाँ ठीक है। अल्टीमेट हो गया, ये वाला यूज नहीं करेंगे अल्ट, क्योंकि सोडरबर्ग आता तो हमें सिग्मा वाई यूज करते। सिग्मा ई कितना दे रखा है 200, तो 200, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, हमें क्या निकालना है अगेन, सिग्मा एम और सिग्मा वी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है। सिग्मा एम क्या होता है, मीन होता है। सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन, मिनिमम, मीन डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ना। सिग्मा वेरिएबल स्ट्रेस क्या होता है इसके लिए, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन, वेरिएबल मीन्स माइनस करेंगे, ठीक है, अपॉन 2। सिग्मा मैक्स निकालना होगा, सिग्मा मिनिमम निकालना होगा, ठीक है, तभी जाके सिग्मा एम और सिग्मा वी निकलेगा, ठीक है। फ्रॉम फिगर, ठीक है। सिग्मा मैक्स कैसे निकलेगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फोर्स वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स वैल्यू निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे क्या, नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे, दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके, बेंडिंग लो, बेंडिंग केस दे रखा है ना कैंटिलीवर का, यू विल बी यूजिंग sigma bending stress upon y is equal to m upon I, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूजिंग, नॉट डायरेक्ट, ठीक है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू या बी इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, ओके। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रख के करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये मैं ग्राफ प्लॉट, थोड़ा डायग्राम प्लॉट करता हूँ। ये है मेरे पास, ठीक है, ये 800, ठीक है, टू 1600, टू 1600 न्यूटन, और ये लेंथ कितना दे रखा है बीम का, 1000 mm, करेक्ट ना, ओके। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, मतलब इसको ऐसे देखेंगे तो ये कितना दे रखा है, दिस इज 12 एंड दिस इज 20, 20 mm, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से, ये लेंथ कितना है, यही लेंथ 1000 है, सेम लेंथ, ठीक है। सो दिस आई एम शोइंग इन 3D। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, बीम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वापिस हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखो सिग्मा बी कर लो, देखो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, यहाँ दो दो लोड दे रखा है, तो दो दो हम लोग स्ट्रेस निकले। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, देखो सिग्मा मैक्स कब आएगा, एम को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू, ठीक है, लेंथ, दिस इज आवर लेंथ, ठीक है। फोर्स इनटू कपलिंग आएगा ना इस तरीके से, ठीक है, मोमेंट इनटू ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। यदि मैं फिर से इसको रीड्रॉ करूँ 2D में,
This is our what? This is our 12 mm. This is our what? This is our 20 mm. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को v से y, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 20/2, ठीक है। I बराबर क्या होता है, I इसका क्या होगा BD3/12, BD3/12, ठीक है। तो B कितना है, दिस इज आवर B, ये हो गया डेप्थ, ठीक है। तो 20 क्यू/12, ठीक है। तो डायरेक्ट राइटिंग हियर 12 इंटू BD3/12 होगा, होगा ना ऐसे, ठीक है। सिग्मा B को B रहने दो, P को P रहने दो, इंटू लेंथ, लेंथ तो कांस्टेंट है 1000, इंटू 10 इंटू 12 अपॉन कितना आ गया 12 इंटू 20 का क्यूब, ठीक है। अब देखा जाए ध्यान से, सिग्मा मैक्स निकालने के लिए हमें पी मैक्स चाहिए, बाकी तो एज इट इज ये रहेगा, 12 इंटू 20 का, ठीक है। ये सिग्मा मिनिमम निकालने के लिए हमें यही सब तो कर रहे थे मिनिमम, ठीक है। सिग्मा मीन करना पड़ेगा, और एक मैक्सिमम लोड दे रखा है 1600, एक मिनिमम लोड दे रखा है 800, बस हो गया। बाकी ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा, दोनों के लिए 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20 का क्यूब, ठीक है। तो हाउ मच वी आर गेटिंग, सिग्मा मैक्स कितना है 1600 इंटू कितना आ रहा है, यूज कैलकुलेटर, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20⁻3, ठीक है। 1000 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 20⁻3, ओके। सो 1.25, ठीक है। हियर मिनिमम कितना है 800, ये 800 हो गया ना, तो ये 800 किलो न्यूटन विल बी यूजिंग। किलो ये किस में है, न्यूटन में है कि किलो न्यूटन में है, न्यूटन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 800 into 1.25, so finally what we are getting is, so this is 1600, ये आ रहा है मेरे पास 1000 में हो गया 20, 10 हो गया, तो बी डी क्यूब, बी हो गया डेप्थ का क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो ये आ गया 100 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो 1000 इंटू 10 इंटू 12 divided by 12 divided by 20 to the power 3. So 1.25 into 1600. So 2000 मेगा पास्कल। ये कितना आ रहा है 800 into 1.25, तो 1000 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एक सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, okay, this is our equation number 2, okay,
and this is our equation number 3. Now put 3 in 2. क्या था? सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. यही था ना 2 में? 2 तो यही था ना, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर क्या आ गया? सिग्मा मैक्स का वैल्यू कितना है? दिस इज अवर 2000 मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 1500 कितना आ रहा है? हाँ ठीक है. सिग्मा वेरिएबल इज इक्वल टू सी मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2. तो सिग्मा मैक्स इज 2000 minus divided by 2. So this we are getting is 500. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1500 और ये 500 आ गया. तो ये मेरे पास जो आया, तो अब पुट करेंगे, पुट 4 इन 1. ठीक है, 1 क्या था मेरे पास? ये था ना. तो 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन क्या था? एम अपॉन 600 प्लस सिग्मा वी वेरिएबल अपॉन 200. तो मिनिमम मीन वैल्यू कितना है? 1500 अपॉन 600 प्लस वेरिएबल कितना आया? 500 अपॉन 200. ठीक है, ये है कैलकुलेशन. तो यहाँ पर 800, सॉरी 100 दे रखा है ना, नॉट 1000, 100 इट इज गिवन. तो दिस इज 100 ना, दिस इज 100, sorry. So L is our 100, not 1000. तो ये आ गया, ये आ गया. ठीक है, इंटू 10 आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा ऑन 10 अपॉन 10. ये आ गया 200, ये आ गया 100. ठीक है, ये आ गया 200, 200, 100. तो ये आ गया 200, 100. तो ये आ गया फाइनली 150 और 50 आ गया. ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं. 150 डिवाइडेड बाई 600 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 200. ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास कैलकुलेशन 0.5. दिस इज आवर 1 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, तो फाइनली फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1 बाई 0.5 इज इक्वल टू 2. तो करेक्ट आंसर इज 2. ठीक है, तो बाई मिस्टेक आई हैव टेकन 1000 हियर, बट क्वेश्चन में 100 दे रखे. ठीक है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. Factor of safety we are getting is 2. The answer is what? It is decimal form में 2.0, 1 decimal 1.0. Now next last question we are going to solve is this one.
कंसिडर द सिमेट्रिक ऑफ ए रिपीटेड लैप जॉइंट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड एफ। ठीक है, F4 से हम लोग टेंसाइल लोड कर रहे हैं एज सोन इन बिलो। लेट डी बी द डायमीटर ऑफ द रिवीट्स, रिवीट का डायमीटर कितना है, कैपिटल डी, एंड एस टी बी द मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट्स। What should be the minimum value of the thickness of the plate to guard against tensile failure of the plates? Assume the plates to be identical. क्या होगा, देखो इसको 3D में विजुअलाइज करते हैं। ये वाला सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये कैसा दिखेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा क्या, ये वाला है ना, ये कितना दे रखा है, W दे रखा है ना। इस व्यू से देखो, व्यू, ठीक है, इधर से हम लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना ये। और ये हाइट कितना दे रखा है, थिकनेस ऑफ द प्लेट इज, है ना। assume the plates to be identical, what should be the minimum value of the thickness, इस t का वैल्यू निकालना है ना। तो क्या देखो, क्या क्या दे रखा है, इफ दे रखा है ऑप्शन में, और एस टी भी। इफ क्या है, लोड, देखो लोड इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। तो लोड बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। लोड कितना है, इफ दे रखे टेंसाइल लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना है, यदि मैं खींच रहा हूँ तो टेंसाइल ही होगा ना, टेंसाइल लोड होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस भी होगा, टेंसाइल टेंसाइल दोनों दे रखा है, इज इक्वल टू एस टी कर सकता हूँ। एरिया की बात आता है, ये वाला सेक्शन पे एरिया कितना मिलेगा, प्लेट का बोल रहा है क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट, रिवीट का नहीं, प्लेट का, किसका, थिकनेस ऑफ द प्लेट का। ये तो कैसे होगा, प्लेट का एरिया क्या होगा, अब देखो यहाँ से यदि मैं कट करूं प्लेट को, कैसे निकलेगा, ये रिबीट हो गया, ऊपर वाला रिबीट, 1 नंबर वाला रिबीट, 2 नंबर वाला रिबीट नीचे और आएगा, ये हो गया कट करके निकाले, ठीक है। रिबीट यदि निकाल रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आएगा क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास क्या, क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, डब्लू, सॉरी डब्लू है ना, और ये कितना है, थिकनेस है, तो हमें थिकनेस, तो एरिया क्या होगा, ये वाला हैचिंग वाला पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये कितना है, दिस इज आवर व्हाट, डायमीटर, या यू कहें दिस इज आवर डायमीटर ऑफ द रिबीट, दिस इज आवर द डायमीटर ऑफ द रिबीट। तो लेंथ इंटू विड्थ कर दें तो ये एरिया आ जाएगा क्या, ठीक है। तो मतलब ये रिबीट है मेरे पास, रिबीट ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यदि मैं इसको ऐसे बीचों बीच फाड़ूं, ठीक है, तरह तो कैसे दिखेगा, ठीक है, कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा क्या, ये हो गया डायमीटर, ठीक है। और ये जहां तक हाइट तक प्लेट को लिए हुए हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द रिबीट, सो दिस इज ऑफ द हाइट ऑफ द रिबीट, दिस इज व्हाट, नथिंग बट डब्ल्यू, ठीक है। तो देखा जाए तो एरिया हैचिंग वाला क्या, कौन सा आएगा, हैचिंग वाला एरिया रेक्टेंगल आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू टी, लेकिन ये वाला को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो प्लेट है ही नहीं, है ना, प्लेट का ही हमें निकालना है ना,
फेलियर, विड्थ W हो गया, इन माइनस 2 × D होगा क्या, यहाँ भी प्लेट नहीं है, ठीक है, यहाँ भी प्लेट नहीं है और यहाँ भी प्लेट नहीं है क्योंकि वहाँ रिपीट है। तो 2 + 2 यानी 2D है ही नहीं, ठीक है। प्लेट कितना एरिया में है, ये वाला एरिया में नहीं है, ठीक है। कौन सा एरिया में नहीं है प्लेट, ये वाला एरिया में नहीं है प्लेट, ये वाला एरिया में प्लेट नहीं है, ठीक है। ये वाला में नहीं है प्लेट, ये वाला एरिया में प्लेट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, नो प्लेट, ठीक है। प्लेट कौन सा है, तो यहाँ डी डी माइनस करेंगे इनटू, ये तो हो गया आपका यूनिट कितना है मीटर, लेकिन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, इनटू टी थिकनेस इनटू टी, ठीक है। हमें टी तो निकालना है, एफ अपॉन एस टी इंटू W - 2 × T, तो दिस इज आवर थिकनेस, ठीक है। ये फेल सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये आएगा, आंसर है यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ई इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। So in this way you can calculate the thickness of the plate. So next more lectures will be for based on this chapter. So stay connected with this channel. Thank you all.